हम 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। रोमन्स 7 चैप्टर 7 वर्स से 25 वर्स, सैम्स 64, 65, 66, 67 चैप्टर्स। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 7 वचन से 25 वचन तक, भजन संहिता 64, 65, 66, 67 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू आबा फादर गॉड। सचमुच मेरे खुदा परमेश्वर, जहाँ पर परमेश्वर हमको पहुँचना है तो पहुँचाना चाहता है। खुदा कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, खुदा परमेश्वर तो आगे पहुँच चुका है और हम परमेश्वर हमेशा ही प्रशंसा और धन्यवाद के साथ परमेश्वर अंत में दिखाई देते हैं। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद। तू अपने वचन को और बढ़ा हमारे अंदर। जो वचन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं खुदा, वो बीज है खुदा, वो जीवित वचन है खुदा परमेश्वर। चाहे इस पृथ्वी के ऊपर खुदा किसी के मन के अंदर परमेश्वर इस वचन के लिए जगह हो ना हो, वो काम करता है खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, इस पृथ्वी के मनुष्यों के जो मिट्टी के शरीर है खुदा परमेश्वर, उसमें पाप के बीज ज्वलंत किए जाते हैं, लेकिन ये वचन परमेश्वर पिता हमारे शरीर के अंदर पवित्रता और धार्मिकता को ज्वलंत करने दे, अनंत काल के जीवन को ज्वलंत करने दे। हमें तेरे अधिकार और सामर्थ्य में पाप के ऊपर प्रभुता करते हुए चलने के लिए तू ये वचन हमारे अंदर से काम करा। ये वचन बीज होकर खुदा हमारे हृदय में से काम करने दे। तेरे राज्य के लिए बड़ी फसल इसमें से आने दे। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, सत्य का आत्मा। तू ही एक परमेश्वर का आत्मा है जो हमें इन वचनों के भेद समझा सकता है, और इन वचनों के भेद को इस्तेमाल करना तू हम में से कर सकता है। तेरे अलावा पवित्र आत्मा, हमारा वचन पढ़ना व्यर्थ है माय गॉड। आबा फादर गॉड, विल लव यू होली स्पिरिट, विल लव यू, विल लव यू, विल लव यू Jesus. We thank you for coming into our life and giving us this sweet Holy Spirit. Thank you, Father. We love you, Abba. Abba, we thank you. Don't leave us. Don't give up on us. We are in you. You are in us, Abba, through these words that dwell in our hearts. In Jesus Christ's name, I pray. We pray to the Heavenly Father God. Amen. 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, रोमन्स 7 चैप्टर 7 वर्स से 25 वर्स। What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law, for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence, for without the law sin was dead. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died. And the commandment which was ordained to life I found to be unto death. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me, by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do I allow not, for what I would that do I not, but what I hate that do I. If then
I do that which I would not. I consent unto the law that it is good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law, that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. No matter what I face, you have gone ahead and worked it out for me. It will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead and worked it out for me. And it will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead and worked it out for me. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर. थैंक यू आबा. सबसे आगे तो पहुंच चुका है और अंत में हम धन्यवाद करते हुए, प्रशंसाएं करते हुए हम प्राप्त होंगे. नासरी यीशु के नाम से पिता, आमीन. रोमियो की पत्री 7 अध्याय 7 वचन से 25 वचन तक पढ़ेंगे. तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता. व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता. परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है. मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया. और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला. इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है. तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे. मनुष्य का अंतर्द्वंद. 14 वचन आगे बढ़ते. हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ. जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ. यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है. तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती. इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते.
क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था में से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। For me, it will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead and worked it out for me. And I will end in praise. No matter what I face, you have gone ahead and worked it out for me. It will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead and worked it out for me. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father God. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Abba, for going ahead and for working out for me. Thank you, Jesus. I will always end in praises. Thank you, Jesus. Thank you, Father. हम सैम्स पढ़ेंगे 64, 65, 66, 67 किंग्स जेम्स वर्शन में से। Psalms 64, David prays for deliverance from his enemies. To the chief musician, a psalm of David. Hear my voice, O God, in my prayer. Preserve my life from fear of the enemy. Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity, who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words, that they may shoot in secret at the perfect. Suddenly do they shoot at him and fear not. They encourage themselves in an evil matter. They commune of laying snares privately. They say, who shall see them? They search out iniquities, they accomplish a diligent search. Both the inward thought of every one of them and the heart is deep. But God shall shoot at them with an arrow, suddenly shall they be wounded. So they shall make their own tongue to fall upon themselves. All that see them shall flee away, and all men shall fear, and shall declare the work of God, for they shall wisely consider of his doing. The righteous shall be glad in the Lord, and shall trust in him, and all the upright in heart shall glory. Psalms 65, Infinite power and goodness of God. To the chief musician, a psalm and song of David. First verse से पढ़ेंगे. Praise waiteth for thee, O God, in Zion, and unto thee shall the vow be performed. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee.
that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea, which by his strength setteth fast the mountains, being girded with power, which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people. They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens. Thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice. Thou visitest the earth and waterest it. Thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water. Thou preparest them corn when thou hast so provided for it. Thou waterest the ridges thereof abundantly. Thou settlest the furrows thereof. Thou makest it soft with showers. Thou blessest the springing thereof. Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths with drop fatness. They drop upon the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. The pastures are clothed with flocks. The valleys also are covered over with corn. They shout for joy. They also sing. Psalms 66. David exhorts to praise God, to observe his great works. To the chief musician, a song of Psalm. First verse से पढ़ेंगे. Make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name. Selah. Come and see the works of God. He is terrible in his doing toward the children of men. He turned the sea into dry land. They went through the flood on foot. There did we rejoice in him. He ruleth by his power forever. His eyes behold the nations. Let not the rebellious exalt themselves. Selah. Oh, bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. For thou, O God, hast proved us, thou hast tried us as silver is tried. Thou broughtest us into the net. Thou laidst affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. I will go into thy house with burnt offerings. I will pray thee my vows, which my lips have uttered, and my mouth hath spoken when I was in trouble. I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings with the incense of rams. I will offer bullocks with goats. Selah. Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he had done for my soul. I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. Psalms 67, a prayer for the enlargement of God's kingdom. To the chief musician on
नेगिनोथ, a psalm or song. First verse से पढ़ेंगे. God be merciful unto us and bless us, and cause his face to shine upon us. Selah. That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. O let the nations be glad and sing for joy. For thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth. Selah. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him. Psalm 68. नहीं, 67 तक ही पढ़ना है हमको. भजन संहिता 64 अध्याय पढ़ेंगे हम पहले वचन से. 64, 65, 66, 67. गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना. प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन. पहले वचन से पढ़ेंगे. हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन. शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर. कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो. उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे. वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं. वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं. वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा. वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है. क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा. वे अचानक घायल हो जाएंगे. वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे. जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे. तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे. धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा, और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे. 65 अध्याय परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद. प्रधान बजाने वालों के लिए दाऊद का भजन गीत. पहले वचन से. हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी. हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे. अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं. हमारे अपराधों को तू ढांप देगा. क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे. हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे. हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा. तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है. इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं. तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है. तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है. परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है. तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है. तो रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है. तो भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है.
अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढांपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। धन्यवाद, ज्ञापन और स्तुति का गीत। प्रधान बजाने वाले के लिए गीत। भजन 66 अध्याय पहले वचन से। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। सेला। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाए। सेला। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा। तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। सेला। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद का गीत। प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ भजन गीत 67 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। सेला। जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। सेला। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 12 चैप्टर 49 वर्स से 59 वर्स। जजेस 9 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूक का रचित सुसमाचार 12 अध्याय 49 वचन से 59 वचन तक और न्यायियों की पुस्तक 9 अध्याय। हम जब ये अकेले में बैठकर वचन पढ़ेंगे तो इन वचनों के अंदर से हमारा पर्सनल व्यक्तिगत समय जो रहता है, उसमें हमने इसे बैठकर पढ़ना है। और जब पढ़ रहे होंगे, परमेश्वर हमें
इन वचनों के भेद पवित्र आत्मा से देगा। वो भेद, वो रहस्य हमारे जीवन के अंदर जीवन की रोटी है, उससे हमने तृप्त हो जाना है, उसको हमने अपने जीवन में चलना है, वो नोट्स बनाकर लिख कर रखना है और उसके अनुसार अपने जीवन में हमने उन वचनों को लेकर चलना है, क्रियाओं में हम चलना है वैसा। और ऐसा करते हुए जैसा आत्मा के व्यवस्था का है, जो आत्मा की विश्वास की व्यवस्था है, उसमें हमने चलना है। और ऐसा करते हुए 2 साल के अंत में हम देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे। और ऐसा जो परमेश्वर व्यक्ति प्राप्त करता है तो बहुत उसके राज्य के कामों में इस्तेमाल कर पाता है वो। इसके लिए हमको परमेश्वर ने ऐसा होने के लिए अनुग्रह दिया है और इस अनुग्रह का निश्चित हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तूने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया पिता परमेश्वर, और हमने तेरे भेद, तेरे रहस्य को पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भर दिया है। और इस प्रकार से परमेश्वर अब तेरे लिए बड़ी उन्नति पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की उन्नति हम लेकर आ पाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता।